السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ہی دعا بار بار زبان پر آئے تو سمجھ لو جب تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خوف سے کھلتی ہے، کوئی تکلیف خیال تمہیں لجا کے رکھ دیتا ہے، مگر یہ اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چن لیا گیا ہے۔ رات کے اس پہر جب اکثر و بتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب تمہیں چن لیا گیا ہے، اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے تمہیں چن کر، تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ وہ رب تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا قبول ہوگی، تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو مگر اس سے نہیں بانٹ رہے ہو جو تمہاری سہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوں گی، تم دعا مانگو وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں اور وہ عرش تک نہ پہنچے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میرے رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، آخر اسے جھوٹ کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافیہ پر افسا کر دے کیونکہ وہ تو خالق وہ مالک ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل دماغ جسم روح مال اور دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ضرورت تو تمہیں ہے اس ذات کی، پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے، وہ اس محبت میں ہی تو تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے بھی زیادہ مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ لے، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ تمہاری ندامتیں خواہشیں سن کر وہ تمہیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے، یہی تو اس کی بادشاہی، یہی تو اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی عنایت ہے۔ وہ تمہاری شہر سے بھی قریب ہے، اب شہر تک کا فاصلہ تو تمہیں خود ہی طے کرنا ہے، ہو سکتا ہے جو اللہ پاک نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ اگر اللہ پاک تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگا، وہ ہر جگہ کہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش تو انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ پاک چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ پاک سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ پاک غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بھی مایوس نہیں ہوتے۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہونا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا، وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اسے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو، دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلہ کبھی جایا نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے؟
जो तुम्हें देते हुए नहीं थकता। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह पाक जरूर देगा, और कुन मोहब्बत है उसकी कि वो दे देता है। अब कबूलियत के जरिए उसके एक हुक्म पर रुके हो, और उसका हुक्म सिर्फ तुम्हारी एक पुकार का मुंतजिर है। वो सुनता है तुम्हारी आवाज जब तुम उससे पुकारते हो, वो देखता है तुम्हें जब तुम आसमान को तकते हो, इस इंतजार में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब मिल जाएगा। उन चीजों पर जो तुम्हें दुख और तकलीफ पहुंचाती हैं, जो हर लम्हा तुम्हें अजियत में मुब्तला रखती हैं। जब हम इस इंतजार में अल्लाह पाक पर यकीन रखते हैं कि कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन रखो हर दिन एक जैसा नहीं रहता। जो चीज तुमने खोई है उसके बदले अल्लाह पाक तुम्हें बेहतर से गुजार कर बेहतरीन से नवाज देगा। और यकीन करो यूं तुम्हें अपने सब्र का हर सिला मिल जाएगा, और तुम्हारा दिल उन चीजों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा जिनकी वजह से आज तुम बेसुकून और अजियत में हो। हाथों का उठ जाना या सर का झुक जाना कभी भी हमारे बस में नहीं होता। हम अल्लाह पाक को कभी नहीं चुनते, अल्लाह पाक हमें चुनता है। फिर चाहे वो हमें सिर्फ लड़खड़ाने पर चुन ले, या कोई जोरदार ठोकर खाकर जमीन पर मुंह के बल गिरने के बाद, फिर चाहे वो खुशी के आंसुओं में चुन ले, या दर्द के एक लंबे सफर के बाद। फर्क इस चीज से नहीं पड़ता कि वो कैसे चुनता है, लेकिन यह जरूरी है कि वो चुन लेता है, क्योंकि उनसे बेहतर कभी कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह पाक को पसंद आ जाए, जिन्हें लाखों मायूस लोगों में से उनके दिल में सिर्फ एक ख्याल डालकर चुनता है, उम्मीद का ख्याल, कबूलियत का ख्याल और उस रब पर यकीन का ख्याल। ऐसा ख्याल जिसका पीछा करते करते वो अल्लाह पाक तक पहुंच जाते हैं, जिनकी पहुंच 7 आसमान पार तक हो। उनके जमीनी कामों के जरिए फिर कैसे और कहां से बनते हैं, ये ख्याल बड़े बड़े अकल वालों की समझ से बाहर है, क्योंकि वो नामुमकिन और नामुमकिन की जंग में उलझ कर हार जीत का फैसला खुद सुना देते हैं। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीर से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल और करम से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे रब से पोसीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर रहीम है? वो अगर रात को दिन और दिन को रात में बदलने पर कादिर है, तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता और न तुम्हारी चाहत से इनकार करता है। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा यह बंदा मेरी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाता है, और जब वो राजी हो जाता है तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर बदल जाते हैं। कौन है अल्लाह पाक? वो जो बस तुम्हारी नेकियों और गुनाहों का हिसाब रखता है, वो जो बस नेकियों का रब है। नहीं, अल्लाह पाक तो रहमान है, अल्लाह पाक तो रहीम है, अल्लाह पाक तुम्हारी कैफियत से वाकिफ है। वो देख रहा है, वो जानता भी है कि तुम कितनी मुश्किल से सब्र कर रहे हो, तुम किस तरह अपने नफ्स से लड़ रहे हो। वो जानता है तुम्हारे कमजोर लम्हात को भी, वो जानता है तुम्हारा बेचैन होना, तुम्हारे दिल का उदास होना भी उससे छुपा हुआ नहीं है। जो तुम छोटी छोटी नेकियां करते हो, जो तुम अपनी जात से पहले उसकी मखलूक का ख्याल करते हो, वो क्या यह सब नहीं जानता? तो जब वो सब जानता है तो वो कैसे तुमसे एक गुनाह पर मुंह मोड़ लेगा? वो तो इंतजार कर रहा है तुम्हारी एक पुकार का, तो पलट जाओ उसकी तरफ। देर नहीं हुई, अभी वो दुआएं सुन लेगा, वो माफ भी कर देगा, क्योंकि वो कहता है कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह पाक तुम्हारी रोती हुई आंखों को ऐसा ठंडा कर देगा जैसे उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडा कर दिया। अल्लाह पाक बहुत जल्द तुम तक खोई हुई चीज वापस ले आएगा, जैसे अंधे कुएं से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक ले आया था। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो, क्या हो सकता है क्या नहीं, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, चाहे जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख दे, लेकिन यकीन रखो अल्लाह पाक तमाम दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देगा। देखना अल्लाह पाक जल्द ही ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा काम है, यानी दुआ, और अल्लाह पाक तो वो कर ही रहा है जो उसका काम है।
यानी अता। अल्लाह पाक के बस में सब कुछ है, वो लम्हों में बदल देगा तकदीर तुम्हारी। देखना अल्लाह पाक जल्द ही कुन कह देगा और एक पल में सिमट जाएगा तुम्हारा टूटा हुआ बिखरा हुआ वजूद। देखना अल्लाह पाक जल्द ही मदद भेजेगा और पलक झपकते ही हो जाएंगे कबूलियत के मुझे। और जो नसीब से न मिल सका, देखना अल्लाह पाक वो भी तुम्हें अता कर देगा। जब वो मदद करने पर आता है तो समंदर में भी रास्ता बना देता है। और तुम क्यों मायूस बैठे हो कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ेगा। तुम बस यकीन कामिल रखो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सदीद मोहब्बत का असल हकदार तो हमारा रब है, जो हमें 70 माओं से भी ज्यादा चाहता है। इतना परेशान ना हुआ करें। याद रखिए, आपके मामलात उसके हाथ में है, जो जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है और कैसे आपकी चाहत को बेहतरीन बनाकर किस वक्त आपको अता करना है। जो रास्ते आपको अनजान लग रहे हैं, देखना अल्लाह पाक उन्हीं रास्तों से मोजिज़ों का सफर शुरू कर देगा। इंतजार करने वालों को ही वही मिलता है जो कोशिश करने वालों के हाथ से बच जाता है। कुछ लोग इंतजार को सब्र का नाम देकर सारी जिंदगी यह रोना रोते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं था। याद रखें, इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने कोशिश की। तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह पाक ना चाहे। तहज्जुद की नियत करके सोया करो, क्योंकि अल्लाह पाक नियत पर भी अजर अता करता है। जिंदगी की सारी बुलंदियां रब के आगे झुकने से मिलती हैं। तुम उस अल्लाह पाक पर यकीन रखो, ऐसा यकीन जो हर शख्स से पाक हो। जिस जात ने तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो उस दुआ को कबूल भी वही जात करेगी। जब सब खो जाते हैं तब अल्लाह पाक मिल जाता है। दुआएं बेवजह तो नहीं होती, यह जो तुम टूट कर बिखरे हो उसके बाद मोजिज़ा तो लाजिम है। कुछ तो अल्लाह पाक की भी रजा होगी, वरना दुआएं बेवजह तो दिल का हिस्सा नहीं बनी। तहज्जुद की दुआएं अल्लाह पाक ने कुन कहने की लिए बनाई हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैब से मोजिज़े उतारे जाते हैं। अल्लाह पाक के कुन कहने की देर है। बस आजमाइश का सिलसिला तो यूं खत्म हो जाएगा। तुम्हारे खामोश सजदे और अनकही बातें अल्लाह पाक के यहाँ बहुत खास मकाम रखती हैं। सब्र का दामन नहीं छोड़ना। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, दुआएं कबूल होंगी। तुम तहज्जुद तक तब आने लगते हो जब कोई खैर होने वाली होती है। दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए अल्लाह पाक के सामने रोना इत्तेफाक नहीं होता। हो सकता है तुम्हारा यह नामुमकिन से मुमकिन तक का सफर तहज्जुद से तय होना हो। जो दुआओं का हिस्सा रहते हैं, अल्लाह पाक उन्हें नसीब का हिस्सा भी बना देता है। और जो दुआ से ना हासिल हो सका, वो तहज्जुद से भी तो हो सकता है। अगर दिल नहीं बदल रहा तो मुमकिन है अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब बदलने के लिए मान गया हो। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं बेबस हो जाती हैं। तहज्जुद का सजदा ही कुन फयाकुन तक लेकर जाता है। यह जो मायूसी है आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी। आखिर में अल्लाह पाक उसी को सिला बनाकर तुम्हें नवाज देता है जो तुमने अल्लाह पाक के लिए खोया होता है। तहज्जुद की ताकत तो ऐसी है कि जिंदगी दिनों में बदल जाती है और कभी तो लम्हों में, और फिर हर तकलीफ का आखिरी हल सजदे में होता है। जिन दुआओं को अल्लाह पाक दिल के करीब रखता है, उन्हें नसीब का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुआओं के मामलात में दिल का कहा ही अल्लाह पाक का कहा होता है। सिर्फ अपनी चाहत का मिल जाना मोजिज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाना भी मोजिज़ा है। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत होते हैं। यह देरी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान भी तो हो सकता है। यह आजमाइश तुम्हें अल्लाह पाक का अपने करीब करने का जरिया भी तो हो सकती है। इस आजमाइश के बाद अल्लाह पाक का मोजिज़ा भी तो हो सकता है। तुम्हारी बार बार पुकारती आवाज अल्लाह पाक को पसंद भी तो हो सकती है। यह सजदा गम का आखिरी सजदा भी तो हो सकता है। तुम जो मांग रहे हो, अल्लाह पाक ने तुम्हारा नसीब उससे बेहतर भी तो लिखा हो सकता है। तुमने जो अपने लिए बेहतर समझते हो, अल्लाह पाक के पास तुम्हारे लिए उससे बेहतर भी तो हो सकता है। कुफ्र है तो फिर क्यों मायूस होते हो? क्या तुम्हें पता नहीं? और अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। सबसे बड़ी दौलत है यकीन।
अल्लाह पाक नजर नहीं आता, लेकिन उसके होने का, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का, उसकी मोहब्बत का, उसके सब सुनने का और उसके सुनकर समझ लेने का, उसके देने का यकीन। अल्लाह पाक को यकीन से भरे दिल वाले बहुत महबूब होते हैं, जो हर गम में कहते हैं अल्लाह पाक हमारे लिए काफी है। कभी सोचा है अगर अल्लाह पाक को आपकी दुआ कबूल न करनी होती तो वो बिला वजह आपके दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता। अगर कबूल न होनी होती अल्लाह पाक आपका दिल भी तो बदल सकता था। क्या पता किसी दिन आपका अधूरा किस्सा मुकम्मल हो जाए और क्या पता आपका कल आज से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। इसलिए यकीन रखो अल्लाह पाक अधूरे किस्से मुकम्मल करने पर कादिर है। उम्मीदें पूरी करने वाली अल्लाह पाक की जात है, उसी से ही हर भलाई की उम्मीद रखें। नमाज और सब्र से काम लें और इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदें जरूर पूरी फरमाएगा। दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। हर मामले में मायूसी कुफ्र है, अल्लाह पाक से उम्मीद रखें। अल्लाह पाक जो तू करे बेहतर करेगा। अल्लाह पाक से मोहब्बत करें, जिंदगी का एक उसूल बना लें। हर खुशी हर गम का पहला हमराज अल्लाह पाक को बनाएं। अल्लाह पाक से बातें करें, अल्लाह पाक को दोस्त बनाएं, क्योंकि जिसे थाम ले और जो अल्लाह पाक की रस्सी को थाम ले तो अल्लाह पाक उसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ जाते हैं, दिल उम्मीदें ख्वाहिश न जाने क्या कुछ, मगर अल्लाह पाक तो मोहब्बत निभाता है। अल्लाह पाक से बातें करके तो देखें, यकीन कीजिए सब्र करने वालों का सब्र जाया नहीं जाता। वो अंधेरे में रोशनी करता है। इस मुश्किल वक्त को देर मत कहो, उसे मोजज़े के आने से पहले का वक्त कहो। ऐ मालिक कुन फयाकुन, ऐ मालिक कुन फयाकुन सबकी मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाह पाक सबकी दुआओं पर कुन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक देखता है जब तुम सजदों में तड़पते हो। अल्लाह पाक देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह पाक को अंदाजा है जब तुम सब्र करते भी थक जाते हो। अल्लाह पाक को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, सब्र रखो। उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह पाक कभी भी ना उम्मीद नहीं होने देता। जब तुम नामुमकिन हालात के बावजूद दुआ मांगना नहीं छोड़ते तो अल्लाह पाक तुम्हें मोजिज़ों की राह दिखाता है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसी की तरफ ढकेले, तब भी अगर तुम अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए गैब से वसीले बना देता है। दर बदर की ठोकरें खाकर जब इंसान अल्लाह पाक के दर पर पहुंचता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे को उसकी चाहत से नवाज देता है। सारी हाजत तो उसी के दर से पूरी होनी है, फिर चाहे सबसे पहले जाओ या सबसे आखिर में। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से है खुशखबरी। तुम क्यों नहीं समझते कि गुजर जाएगी यह मुश्किल घड़ी। तुम नाराज ना हो अल्लाह पाक से, तुम तो महबूब बंदे हो उसके, वो तो नवाजना चाह रहा है तुमको हर गुनाह से करके बरी। जो दुआ मांगते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखना बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हें थाम लेगा, तुम्हारी मनचाही की तुम्हें अता कर देगा और फिर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लोगों की साजिशें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुरान के वाज अल्फाज हैं और तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। बाज दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती हैं कि लगता है कि पूरी ना हो तो सांस से रुक जाएगी, क्योंकि कुछ दुआएं हमारी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। गम शिद्दत पकड़ जाए तो आंखें खुद ब खुद ने तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। जो खोया है तुमने वो अल्लाह पाक की मसलियत का हिस्सा था। तुम अल्लाह पाक से उसे दोबारा मांग रहे हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने तुम्हें दुआ का रास्ता दिखा दिया है और तुम्हारा दिल दुआ की जानिब मोड़ दिया है। यह सब अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ है, तो परेशान क्यों हो। उन दुआओं को मौजज़ों में बदलना अल्लाह पाक का काम है, तो तुम सिर्फ दुआ करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह पाक के काम की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि वो अपने काम बखूबी जानता है। जब हम अल्लाह पाक की रजा में राजी होते हैं तब अल्लाह पाक पूरी कायनात को हमें राजी करने में लगा देता है। इसलिए छोड़ दें सोचना, परेशान होना। मामलात आपकी दस्तरस से बाहर है। नामुमकिन के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, इसलिए सब्र से इंतजार करें। अल्लाह पाक से शिकवे करने
کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں، بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ جانتے ہو اللہ پاک پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقت ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعا مانگتے ہو اللہ پاک تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، قرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں جایا جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ پاک جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ پاک کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس تبک کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ پاک نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ پاک سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں اللہ پاک نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں اور اللہ پاک کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی، پریشانی اور افسردگی میں ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عقیدت جڑے رکھتے ہیں، اس لیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنج کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب ایک شخص ذہنی چیلنج کے باوجود اللہ پاک پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا عظیم ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہے؟ یقین، ہم صحیح اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پاک پر اس طرح سے یقین نہیں کر پاتے۔ کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت قریب ہے، فکر مت کریں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے، لیکن راحت قریب ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی منزل آپ کے بہت قریب ہے، آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ بس تھوڑا صبر کریں اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں اور اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزلوں کو پالیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہے۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہی ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں، محنت کریں اور اللہ پاک آپ کو ایسے راستے فراہ کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا ہے تو اس نے آپ کو دیکھا اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھے اس نے آپ کی دعائیں سنی۔ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو جب اللہ پاک آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہٰذا اللہ پاک آپ کو انتظار کروا رہا ہے تاکہ جب آپ کو
वो चीज मिले जो आपका दिल मांग रहा है तो आप अल्लाह पाक के और भी करीब हो जाएं। आप उसे छोड़ने के बारे में कभी भी न सोचें, उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। पहली बात तो यह है कि आपको यह याद रखना है कि यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआ सब कुछ कर सकती है। जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए दुनिया के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो इस पूरे निजाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता है और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में और शाम रात में बदल जाती है। जो तुम्हें आज तक संभालता आया है वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल ना करेगा। अल्लाह पाक से जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो जरूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती नजर आएंगी, खुद ही मोजज़े रोनुमान होते नजर आएंगे। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर और रहीम है? वो अगर रात को दिन और दिन को रात बदलने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता और न तुम्हारी चाहत से इनकार करता है। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा यह बंदा मेरी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाता है, और फिर जब वो राजी हो जाता है तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर सब बदल जाते हैं। अपनी दुआओं पर कामिल यकीन रखना सीखे। यकीन के बगैर दुआ अधूरी है। आप जिस रब की बारगाह में अपनी मुश्किलात का हल मांग रहे हो वो इस दुनिया का ही नहीं पूरी कायनात का मालिक है। वो कुन और फयाकुन का मालिक है। उसके बस में है हर चीज को कर देना है। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। यह दुनिया उसूल पर चल रही है। आपकी दुआ का जवाब नहीं आया अब तक तो इसका मतलब यह नहीं कि दुआ सुनी नहीं गई। आपकी दुआ करने से पहले ही वो रब आपकी दुआ से वाकिफ है। बस अभी जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए फिलहाल ठीक नहीं है। शायद उससे बेहतर आपको मिलना हो। वो आपकी मदद भी करेगा और ख्वाहिश को भी पूरा करेगा, मगर तब जब वो आपके हक में बेहतर होंगी। उसकी अता पर शक ना रखें जरा सा भी, क्योंकि अगर आपकी मदद मांग रहे हैं तो यकीन रख करें उसकी मदद आपके लिए जरूर नसीब होगी। जो सुकून तुम्हें कहीं से नहीं मिल सका उसे एक दफा तहज्जुद में ढूंढ कर तो देखो। जो तुम्हें अब तक नहीं मिला उसे तहज्जुद में मांग कर तो देखो। थोड़े राब्ते से बात नहीं बनी तो राब्ता बढ़ा कर तो देखो। अल्लाह पाक से मांगो, बार बार मांगो, तब तक मांगते रहो जब तक वो उस चीज को तुम्हारी झोली में रख नहीं देता या तुम्हारा दिल बदल नहीं देता। जब हम पर कोई आजमाइश आती है तो हम समझ पाते हैं कि उस रब की किस किस नेमत का शुक्र अदा करना बनता है, पर हम भूल ही जाते हैं कि हमारा यह सेहतमंद जिस्म कितनी बड़ी इनायत है अल्लाह पाक की। और फिर अचानक से कोई बीमारी आजमाइश बनकर हमारे अंदर शुक्र के जज्बे को मजीद बेहतर बना देती है। अपनी जिंदगियों और उनमें मौजूद उसकी रहमतों का शुक्र अदा करते रहा करें। हम उसके किसी कर्म का बदला नहीं चुका सकते। वो बहुत मेहरबान है। जिंदगी के जिस भी हिस्से में आपको अपने किसी गुनाह का एहसास हो जाए तो उस गुनाह को उसी वक्त तर्क कर दें। हरगिज ना सोचे कि अब क्या फायदा, अब तो मुझे इतना अरसा हो गया है इस गुनाह में, अब तो नहीं छोड़ सकता, या अब तो अल्लाह पाक माफ नहीं करेगा। यह सब सिर्फ शैतानी वसवसे हैं। वो रब कह चुका है कि जब तक तुम तौबा का दरवाजा खुला है तब तक माफ करता रहूंगा। तो मांग ले, माफी छोड़ दे, गुनाह का रास्ता उसकी रहमत से मायूस ना हो। आप जो भी उसकी खातिर छोड़ोगे वो आपको उससे बेहतर अता करेगा। वो माफ करने वाला बड़ा मेहरबान रब है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें यह तस्लीम करना होगा कि तुम भी गलत हो सकते हो। तुम इंसान हो, तुम हर बार मामले में सही हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक तुम अपनी गलती तस्लीम नहीं करोगे तुम कुछ सीख नहीं सकते। हम सब इंसान हैं, हम में से कोई भी गलती से पाक नहीं। सारी तकालीफ दूर कर दी जाएंगी, हर दर्द का मरहम भेज दिया जाएगा। अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चलकर आएगा तो मैं दौड़ कर जाऊंगा। अल्लाह पाक को मनाओ, उससे लाड करो जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त यार से करते हो। अपनी हर छोटी से छोटी बात भी अल्लाह पाक को बताओ। चलते फिरते, काम काज करते, उठते बैठते, सोते जागते जो बात भी दिल में है जो तुम्हें परेशान कर रही है उसका तज़किरा अल्लाह पाक से ही करो।
मसलियत को समझने से ज्यादा जरूरी है उन मसलियत पर यकीन रखना होता है जिसे तुम अल्लाह पाक को मान सकते हो मगर जान नहीं सकते, और उसको मानना ही सबसे जरूरी है क्योंकि उसकी इजाज़त तुम्हारी सोच से बहुत वसी है, और जिसको जानना नामुमकिन हो उसकी मसलियतों की राजदारियां तुम्हारी समझ में कहाँ आने वाली हैं। गम से तो जिंदगी की लज्जत होती है, और इम्तिहान अल्लाह पाक उन्हीं का लेता है जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। जानते हो क्यों? ताकि वो उन्हें चुन ले और अपना बना ले, और जिनको वो चुन लेता है उन्हें किसी और का नहीं होने देता, इसलिए वो उन चीजों को तुमसे दूर कर देता है जो तुम्हारे और उसके दरमियान फासला हायल करती हैं, और यूं ताम में वो रह जाता है और तुम रह जाते हो। तुम जब तक अल्लाह पाक से दूर रहते हो तब तक कमजोर रहते हो, मगर जब तुम में समझ आता है तब तुमसे ज्यादा ताकतवर शख्स और कोई नहीं होता, और इस इंसान से ज्यादा मजबूत भी हो सकता है जो अल्लाह पाक को अपने लिए काफी कर ले। उससे ज्यादा साबिर और कौन हो सकता है जो अल्लाह पाक के सिवा और किसी से मदद तलब ना करे। तुम्हारा यही तो मसला है कि तुम दुनिया को राजी करने में इतना मसरूफ हो जाते हो कि उसको खफा कर देते हो जिसकी रजा से ही तुम्हारी रजा जुड़ी है। तुम दुनिया के रूबरू मजबूत बनने में सारी जान लगा देते हो, और फिर यही दुनिया तुम्हें तोड़ देती है, और फिर तुम इन किरचियों को समेट कर तुम अल्लाह पाक के पास वापस आते हो। सब्र और बंदे की तड़प कभी भी जाया नहीं जाती, और इस बात पर भी यकीन रखो कि अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है, जितना सब्र लेती है वो उतनी ही ज्यादा रंग लाती है। तो अपने उठे हुए हाथों को कभी मायूसी की वजह से झुकने न देना, क्योंकि अल्लाह पाक कभी कभी सब्र की आखिरी हद आजमाता है, और उसके बाद सिर्फ एक ही मरहला आता है, और वो है उसका कुन। तुम उसकी रजा और करम पर शक न करो, दुआ करते जाओ। वो कादिर है नसीब बदलने पर, हालात बदलने पर, नामुमकिन को मुमकिन कर देने पर, बंद राहों को खोल देने पर। तो तुम परेशान ना हो और उदास ना हो, बस यकीन के साथ दुआ करते जाओ, हर ला हासिल हो जाएगा। जानते हो तुम अल्लाह पाक को बहुत महबूब हो, क्योंकि तुमने आजमाइश को हंसकर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तुमने अपने यकीन को कमजोर नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मुआजिजे होते हैं। यकीनन वो वक्त बहुत ही करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रजा के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो फरमाता है, एह नाउम्मीदी के वसवसे तुम्हें तबाह कर देंगे, मैंने ना तुम्हें छोड़ा है और ना तुमसे बेजार हूँ। आप आज तकलीफ में हैं तो सब्र कर ले, कल यह तकलीफ खत्म हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, तंगी के यह दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन रब पर यकीन वो है जो आपने हमेशा पुख्ता रखना है। उस यकीन के तसव्वुर को टूटने नहीं देना, फिर देखना मोजिजे होंगे। और कुन फयाकुन आसमान से उतार के देख के आपकी सारी अजियत खत्म हो जाएगी, बस खुशियां आपके दामन में भर दी जाएंगी। हमने बस कोशिश करनी है, अल्लाह पाक की हर बात मानने की कोशिश करनी है, सब्र करने की कोशिश करनी है, गुनाह से बचने की कोशिश करनी है, गुस्सा जब्त करने की कोशिश करनी है, जुबान कान और आंखों की हिफाजत की कोशिश करनी है, दिल की सलामती की कोशिश करनी है। मुजब रहने की हमारे बस में सिर्फ कोशिश ही तो है, उससे ज्यादा अल्लाह पाक ने हमसे डिमांड भी क्या किया है। जरूरी नहीं हम अपनी हर कोशिश में कामयाब हो जाएं, कभी कभी 20 पर कामयाबी होगी तो कभी 60 पर कामयाबी होगी तो कभी 80 पर कामयाबी होगी। 100% हर कोशिश में कामयाब हो जाने वाले हम बने ही नहीं हैं, और अल्लाह पाक ने हमसे परफेक्शन मांगी भी नहीं है। अल्लाह पाक हमारी कोशिश देख रहा है, बस कि हम कोशिश भी करते हैं या जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कोशिश करना है फिर सारी चीजें उस रब के हवाले कर देनी चाहिए। उस रब के हवाले सब मामलात कर देने का मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है मुकम्मल यकीन के साथ सब्र कर जाना, इस बात का इत्मीनान कर लेना कि अब जो भी होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि वो रब आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जो आपको नुकसान पहुंचाए, और उसकी कदर इतनी वसी है कि वो आपकी सब दुआओं को कबूल कर ले। तो जब मामलात उसके सुपुर्द कर दो तो खुद को हर परेशानी से भी आजाद कर दिया करो, क्योंकि
नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिद मुबारक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।